Yeah, good evening, all of you. In our 34 national webinar on digitalization, आज का जो टॉपिक हमने लिया है डिजिटलाइजेशन के ऊपर में, ज़्यादातर लोगों को पता है डिजिटलाइजेशन क्या है, डिजिटल क्या है। कोई भी हार्ड पेपर, हार्ड डॉक्यूमेंट, हार्ड डेटा जो भी है उसको अगर हम डिजिटल फॉर्म में लेकर के जाते हैं तो उसको डिजिटलाइजेशन बोलते हैं। सो वेलकम all our participants on our 34 national webinar on digitalization। कभी आपने सोचा है कि डिजिटलाइजेशन के फायदे क्या है और नुकसान क्या है? सो टुडेज वेबिनार ऑन digitalization we are conducting for pros and cons of digitalization. What is digitalization? First of all, I thank to all my participants for their regular supports and our team, Dr. Purti Trivedi, Dr. Sujan Patel and myself, Dr. Atul Kumar Misra. Those participants are new for the webinar. Please subscribe our channel SK Media Tech. So every Sunday we are conducting or sharing the useful information through our national webinars, and also thanks our overseas subscribers and our supporters, our participants. So now continue with the topic. What is digitalization? Digitalization is the process converting information into a digital. Digitalization is a process of converting information into a digital format in which the information is organized into bits. The result is the representation of an object, image, sound, document or single usually by generating a series of numbers that describes a discrete set of points or samples. The result is called digital representation, or more specifically a digital image. For the object and digital form for the signal, in modern practice the digitalized data is the form of binary numbers, which facilitate computer processing and other operations, but strictly speaking, digitalizing simply means the conversion of analog sources material into a numerical format, the decimal or any other number system that can be used in instead. आपको एक इन शॉर्ट एक छोटे सी लाइन में सिंपल अगर हम करें, कोई भी एनालॉग डेटा, कोई भी हार्ड डेटा, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको कि हम एक सॉफ्ट वर्जन में या डिजिटल वर्जन में लेकर के जाते हैं तो वो हमारा डिजिटलाइजेशन होता है। आज आप देखें कि डिजिटलाइजेशन का काफ़ी चलन बढ़ गया। हर जगह पर आप देखें कि मोस्ट ऑफ चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, मोस्ट ऑफ चीज़ें बदलती जा रही हैं, और आज डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सब जगह देखो तो डिजिटल का ही बूम है। पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर ने शक्ल बदली, कंप्यूटर चेंज हुए, आज कंप्यूटर आप देखें लैपटॉप हुआ, लैपटॉप टैबलेट, टैबलेट आज आपका स्मार्टफोन आपके वो सारे काम करता है। मैक्सिमम सारे काम आपका एक स्मार्टफोन करता है जो आपका लैपटॉप या टैबलेट कर सकते हैं या आपका कंप्यूटर, और इजी एक्सेस है। कोई भी चीज आप अपने स्मार्टफोन पर इजी एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर कर सकते हैं। सो डिजिटलाइजेशन के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, डिजिटलाइजेशन के काफ़ी सारे फायदे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी वस्तु के फायदे और नुकसान होते हैं, कोई भी वस्तु के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिविटी होती है, और किसी भी वस्तु का फायदा और नुकसान होता है। उसी तरीके से डिजिटलाइजेशन के भी बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। तो हमारा आज का जो वेबिनार है वो रिलेटेड टू द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ डिजिटलाइजेशन के ऊपर में है। तो हम पहले जितनी भी अच्छाइयाँ हैं डिजिटलाइजेशन की, जितने भी बेनिफिट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। सो वी कंटिन्यू विद द टॉपिक।
फर्स्ट बेनिफिट है सोशल कनेक्टिविटी। आप में से काफ़ी सारे लोग बड़े हैप्पी हो रहे होंगे कि सोशल कनेक्टिविटी सभी लोग जानते हैं। सोशल कनेक्टिविटी जो है, पहले हम देखते हैं क्या है। डिजिटल टेक्नोलॉजी makes it easy to stay in touch with friends, family, and work remotely. If you are in other part of the world, you can communicate by words, video, audio, and exchange other media. Websites, apps, and software have all been created to help user to socialize. Social media messaging, texting, laptops, tablets, and mobile phones mean that nobody need to feel isolated in the digital world. Users can be regularly updated with news on local events and social happenings. तो सोशल मीडिया आप देखें कि आप कहीं पर भी हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, आप व्हाट्सअप यूज करते हैं, आप कहीं पर भी हैं, आप कहीं भी किसी के साथ किसी भी जगह से कनेक्ट हो सकते हैं, अपने सोशल गैदरिंग कर सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कॉलिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो फोटो शेयर कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं, आप कोई भी मतलब आप कोई भी फैमिली फंक्शन भी आज की तारीख में चाहें तो यूट्यूब लाइव पर भी आप देख सकते हैं। तो डिजिटलाइजेशन का काफ़ी सारा फायदा बेनिफिट्स हुआ है, जिसमें से एक ये सोशल वेलफेयर है। सोशलाइट जो है आज की तारीख में आप देखें तो आपको आज सारी वो चीज़ें मालूम पड़ती हैं कि आपके किस रिलेटिव ने कहाँ पर घूमने गया था, आपका कौन सा रिलेटिव किस जगह पे क्या काम कर रहा है, क्या मतलब आजकल तो लोग अपने आप को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर चुके हैं। अगर आप देखो तो सोशल मीडिया पर अपने आप आज घर में क्या पका है वो भी रख देते हैं, आपके घर में आज क्या खाना पका है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। कहीं घूमने गए वायरल, एयरपोर्ट पे एक्सेस किया वायरल, होटल में रुकने गए वायरल। मतलब आज कोई भी पर्सन, बहुत सारे लोग तो इतने शौकीन होते हैं अपनी हर डेली एक्टिविटी, रूटीन एक्टिविटी भी डालते रहते हैं। आप सुबह सो के उठ नहीं पाओगे उसके पहले आपके पास गुड मॉर्निंग मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेज आ जाएगा, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। तो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में अकेला नहीं होता। एक वर्ड है आइसोलेशन, मतलब जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट से अपने को थोड़ा सा अलग कर लेना, अकेलेपन में चले जाना, एकांत में चले जाना, दैट्स कॉल्ड आइसोलेशन। आइसोलेशन के अंदर में भी आपका जो साथी है आपका स्मार्टफोन, और उस स्मार्टफोन के जरिए आप पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट रह सकते हैं। अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ में आप रेगुलर चैटिंग कर सकते हो, रेगुलर सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो आज के तारीख में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे फ्रेंड भी हैं, काफ़ी सारे बहुत अच्छे एडवांटेज भी हैं सोशल मीडिया के, जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आपसे मिस हो गया, क्योंकि पहले के टाइम पे ये सब नहीं था, लोग चिट्ठी लिखते थे, अब एड्रेस नहीं पता, जगह लोकेशन चेंज हो गई, लैंडलाइन नंबर चेंज हो गए, तो काफ़ी सारा डेटा चला गया, पता नहीं कौन कहाँ है, कुछ पता नहीं हमको। लेकिन अगर आपके दिमाग में ये है कि वो पर्सन नेट यूज करता हूँ, आज की तारीख में तो मैक्सिमम लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं उनके मोबाइल के अंदर में नेट होता ही है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि भाई हाँ वो पर्सन नेट यूज कर रहा है, डेट्स वाई आप उसको आपने उसको बोला कि भाई आपने फेसबुक पे जाकर सर्च किया, नाम डाला, तो काफ़ी सारे लोग रिलेटेड नाम के वहाँ पे आएंगे, उनमें मे बी चांसेस टू इंक्रीज टू फाइंड योर फ्रेंड और रिलेटिव ऑन द सोशल मीडिया। काफ़ी सारे लोगों ने अपने पुराने दोस्तों को सोशल मीडिया पर फाइंड आउट किया। काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि उनका मोबाइल लॉस्ट हुआ और वो बड़े परेशान हुए, उनको नंबर याद नहीं था, लेकिन किसी भी फ्रेंड का क्या करें, तो
तो उन्होंने साइबर कैफे जाकर कहीं भी जाके के कुछ फेसबुक एक्सेस किया, कुछ किया, तो उसमें उनको नंबर मिले, देन उन्होंने बातचीत भी की। तो आज की तारीख में तो आप फेसबुक से लाइव कॉलिंग भी कर सकते हैं। आपको नंबर पता नहीं, बहुत से लोग क्या है कि फेसबुक के ऊपर भी अपने नंबर को हाइड करते हैं, तो आप अगर चाहो तो फेसबुक के ऊपर आप लाइव कॉलिंग करेंगे तो जो नंबर उसने फेसबुक के टाइम पे दिया है वो नंबर पे लाइव कॉलिंग हो जाएगी। तो ये मेजर बेनिफिट है आज की तारीख में सोशल कनेक्टिविटी का। कम्युनिकेशन स्पीड्स, so internet speeds have increased exponentially since the early days of dial-up. Ever faster broadband enables the transfer of large amounts of information across the web almost instantaneously, making it possible to stream video and audio in real time, send large data files, and access the data from virtually anywhere in the world. Traditional media and communication can take much longer. तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन स्पीड जो हमारी है वो काफी बड़ी बढ़ गई है। आप देखिए पहले के टाइम पे इतना टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थे हम लोग, तो हमारी कनेक्टिविटी स्पीड बहुत स्लो थी। हम एक मेल करते थे तो काफ़ी टाइम के बाद मेल जाता, अगर उसमें अटैचमेंट आ गया तो आप समझो कि मेल आपका पहुंचा या नहीं पहुंचा, कोई गारंटी नहीं। आज की तारीख में कितना भी हैवी डेटा हो, कितना भी हैवी फाइल हो, वो आपको विद इन मिनट्स और सेकेंड्स में वो चीज़ जाती है। सेकेंड कि आज की तारीख में आप देखेंगे कि कनेक्टिंग स्पीड, अब वीडियो है या कोई मूवी है, आप यूट्यूब पर या अदर सोर्सेज के थ्रू इजीली आप एक्सेस कर पा रहे हैं। पहले टेक्नोलॉजिकल हम इतने एडवांस नहीं थे, टेक्नोलॉजी खुद इतनी एडवांस नहीं थी, जिसके कारण कि वो सारी चीज़ें उस रियल टाइम में नहीं हो पा रही थी। तो ये बहुत ही अगेन एक बड़ा बेनिफिट हुआ डिजिटलाइजेशन का कि आपकी कनेक्टिंग स्पीड्स बढ़ गई। आप लोगों से इजीली जुड़ सकते हैं, आप लोगों से इजीली अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स फ्रॉम डिजिटलाइजेशन। नाउ versatile working. The nature of work has been transformed by digital technology. Increased connectivity options mean that many people now have far more opportunities for working from home as remote working becomes increasingly. Many jobs can now be done from hundreds or even thousands of miles away without difficulty, without the need for all workers to be present in the same building. Many other flexible working practices are now possible. तो वर्सटाइल वर्किंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की टाइम पे आपको मैं बोलूँ, कोरोना वायरस पेंडेमिक टाइम के अंदर में वर्क फ्रॉम होम। आपने बहुत ही पॉपुलर वर्ड सुना, वर्क फ्रॉम होम। अभी आप मुझे बताइए कि अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो अभी तक ऑफिस क्यों जा रहे थे? अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता था तो अभी तक ऑफिस क्यों जा रहे थे? क्योंकि तीन चीजें हैं। पहले तो ऑफिस के अंदर जब आप जाते हो तो आपको एक एटमॉस्फेयर मिलता है ऑफिस का, आपको एक माहौल मिलता है जहां पर कि आप अपने आप को उस चीज में ढाल लेते हैं। सेकंड, कुछ टाइमिंग होती है। थर्ड, पंक्चुअलिटी जो रहती है, डेडिकेशन रहता है। अब वर्क फ्रॉम होम में क्या हुआ कि काम तो वो सारे हो रहे हैं, किसके थ्रू? आज हम वर्क फ्रॉम होम में जो सारे काम कर रहे हैं वो सारे डिजिटल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं, डिजिटल पैरामीटर्स पे कर रहे हैं, डिजिटल लाइसेंस के थ्रू कर रहे हैं। आज आप घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पे बहुत सारा काम निपटा रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आप उसको रिप्लाई कर रहे हो, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल आज आप देखो, आज आप लैपटॉप के ऊपर में हमारा वेबिनार आप सुन रहे हो, ठीक है, मैं आपसे कुछ चीजें शेयर कर रहा हूँ, आप कहीं भी हो, आप पुणे में हो, आप औरंगाबाद में हो, आप चेन्नई में हो, यू आर फ्रॉम उड़ीसा, और कहीं भी किसी भी जगह वर्ल्ड में, फिलीपींस, ताइवान, कहीं भी आप हो,
आप मेरे इस वीडियो को YouTube पर कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इट्स ए वेरी गुड बेनिफिट ऑफ डिजिटलाइजेशन, इट्स अ वर्सटाइल वर्किंग स्टाइल। अगर आप देखें आज की तारीख में क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस आल्सो ए बेस्ट एग्जांपल। Most of teachers are taking, most in a coronavirus pandemic time, there are lots of colleges, lots of students are taking class online. ऑनलाइन क्लासेस बच्चे ले रहे हैं, रेगुलर टाइम पे क्लास ज्वाइन होती है, बच्चे क्लास ले रहे हैं। इट्स ए वन टाइप ऑफ ए न्यू जनरेशन वर्किंग स्टाइल, यू कैन से इट्स ए न्यू जनरेशन ऑफ वर्किंग स्टाइल। सो डिजिटलाइजेशन ने इसको भी पॉसिबल किया। जो चीजें बहुत ही टफ लगती थी, बहुत ही हार्ड लगती थी, डिजिटलाइजेशन ने उन चीजों को एक स्मूथ वे में लाना शुरू किया। नाउ लर्निंग opportunities, anybody with access to the internet now has access to huge proportion of the world's knowledge over the web. Lessons and courses can now be delivered virtually online. Communication and advance mean that you can now easily communicate with most of the world's population and learn directly from sources. For example, if you are trying to understand foreign event or learning a new language, digital technology can also be easier to use for people with disabilities and often given them equal access. अभी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन होने से आप अगर देखेंगे कि काफी सारे लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुए। आप अगर देखो कि आप आज की तारीख में नेट पर से आप अच्छे से अच्छे ऑथर की बुक पढ़ सकते हैं। आप ऑनलाइन किंडल ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से अच्छी अच्छी बुकें बाय कर सकते हैं। आप अगर किसी प्रोफेसर से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आप अलग अलग मीटिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू सीख सकते हैं, जो आजकल लोग सीख ही रहे। आजकल जो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो इसका ही एग्जाम्पल है। आज आप जिस तरीके से आप हमारे वेबिनार को अटेंड करते हैं, हम आपसे कुछ चीजें शेयर करते हैं, हम आपसे अपनी नॉलेज शेयर करते हैं, या हमने कुछ गेन किया है, हमें कुछ पता चला, या हम कुछ चीज अच्छी अच्छी टॉपिक्स पे हम बात करते हैं, हम वो चीज आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे एवरी पार्टिसिपेंट, वी आर डिस्कसिंग विद न्यू टॉपिक्स एवरी पार्टिसिपेंट विद एवरी संडे एट 4 PM रेगुलरली। हमने 4 बजे अच्छे अच्छे टॉपिक लाके आपको हम हर वो चीज शेयर करते हैं। डेडिकेशन, सोशल मीडिया पर जितना इम्पोर्टेंस आज की तारीख में हो गया है, सोशल मीडिया के पे आप जाए तो आपको वहां पर जितनी सारी चीजें मिलती हैं उसमें बहुत सारी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड भी आती हैं। तो लर्निंग एजुकेशन ऑनलाइन काफी इजी हो गया। हमारा एसके मीडिया टेक यूट्यूब चैनल, एसके मीडिया रिसर्च यूट्यूब चैनल इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी आर नॉट taking any charges from the webinar and other sources. हम only our motto, our team motto to spreading positivity to the world. हमारी इच्छा है कि जो भी कुछ हम जानते हैं, जो भी कुछ हम रिसर्च करते हैं, जो भी कुछ हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं, हम चाहते हैं कि एवरी संडे हम जहाँ तक हो सके अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ वो चीज़ को शेयर करें। अगर आप लोग जो भी पार्टिसिपेंट अगर कुछ अलग, कुछ उनको भी कुछ अगर जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन लर्निंग को डिजिटलाइजेशन ने काफी इजी कर दिया। सो ऑटोमेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंगली मेकिंग मशीन्स स्मार्टर। इन सम केसेस द मशीन्स नो लॉन्गर नीड ह्यूमंस टू ऑपरेट देम, freeing up workers from often
repetitive tasks for more interesting jobs. In other cases, smarter machines mean better standard of safety or a better experience for the user. Product and service drop in price as the technology develops and become more common. Many tasks can now be done directly by customers rather than having to be done through another person acting as intermediary, for instance booking a holiday. वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें आज की तारीख में द ऑटोमेशन के अंदर में भी डिजिटलाइजेशन ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया। आज काफ़ी सारे मशीनें ऐसी हैं जो ऑटोमेटिकली आ गई हैं और उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आप कंपटीशन को इजीली फेस कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो मार्केट कंपटीशन को भी आप इजीली फेस कर रहे हैं। और दूसरा कि ऑटोमेशन के कारण आज मशीन्स के अंदर में सेफ्टी पॉइंट्स बहुत बढ़ गए। थर्ड पर कि भाई आज बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो कि विदाउट ह्यूमन एफर्ट के चलती हैं। टोटल ऑटोमेटिक प्लांट्स आ गए, टोटल ऑटोमेटिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ जगह पर आप देखेंगे कि भाई बहुत सारे लेबर क्या करते कि छुट्टियां मार लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स है, सोशलाइट हैं, भाई फंक्शन होते रहते हैं, घर में कोई फंक्शन आया, कुछ हुआ, कुछ भी हुआ कि भाई तो छुट्टी पड़ जाती है। जब एम्प्लॉय या लेबर की जो छुट्टी पड़ती है कंपनी में तो उसके प्रोडक्शन पे फर्क पड़ता है। और उस फर्क के कारण क्या होता है कि जब प्रोडक्शन डिले होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप उस कॉस्ट के कारण मार्केट में कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। तो ऑटोमेशन ने इन सारी चीज़ों को दूर कर दिया। आज ऑटोमेशन के कारण आपको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बन रहे हैं, मार्केट में आप कंपटीशन फेस कर रहे हैं और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया है। सो नाउ द अनदर पॉइंट, इंफॉर्मेशन स्टोरेज। Digital technology enables the storage of massive amounts of information in relatively small spaces. Large amounts of media, such as photo, music, video, contact information, and other documents, can be carried around on a small device like mobile phones, as well as physical location. Data can be also be stored online, enabling to be accessed from any device with the internet access. अभी आप देखें इंफॉर्मेशन स्टोरेज। पहले कोई भी वस्तु को इंफॉर्मेशन, कोई भी आपका डेटा है, फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए आपको जगह, स्पेस की जरूरत पड़ती थी कि भाई अलमारी में रखना है, सूटकेस में रखना है, फाइलिंग करनी है, तो बहुत सारी स्पेस वो घेरता था। लॉट्स ऑफ स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द हार्ड कॉपी स्टोरेज। तो डिजिटलाइजेशन ने क्या किया कि उन सबको सॉफ्ट वर्जन में लेकर के एक छोटे से डिवाइस के अंदर में उसको स्टोर कर दिया। अभी आपको याद होगा कि भाई पहले के टाइम पे हम लोग जो भी स्टोर करते थे, पहले फ्लॉपी आती थी, फिर सीडी आई, आज आप देखिए छोटा चिप 64 GB, 128 GB, इतने जीबी के चिप, माइक्रो चिप में इतना डेटा स्टोर होता है जीबी में। हार्ड डिस्क आ रहे हैं 1000 GB, 2000 GB। सो इंफॉर्मेशन स्टोरेज हमारा इजीली हो गया। नाउ एडिटिंग वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी ओवर ट्रेडिशनल मीडिया इज दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी मच इजियर टू एडिट और मैनिपुलेट। वर्ड प्रोसेसिंग हैज ब्रॉट अबाउट ए रिवॉल्यूशन इन द एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट। Video editing, which used to require expensive studios and equipment, can now be done on our laptop in bedroom. All sort of photographs effects are now available, as well as the availability of to crop, resize and creativity after editing. एडिटिंग आपके इमेज में आप एडिट कर सकते हो, ये इजी हो गया। आप अपने वीडियो को कट पेस्ट कर सकते। पहले क्या था, इन सारी चीज़ों को आपको पता होगा कि पहले के टाइम पे जब फोटोग्राफ खींचते थे कैमरा था,
कैमरे के साथ में रोल आती थी और रोल वो डेवलप होती थी और डेवलप होने के बाद में उसकी इमेज आती थी। लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, लॉट्स ऑफ टाइम कंज्यूमिंग, लॉट्स ऑफ एक्सपेंस उसमें लगता था। लैब्स होते थे बड़े बड़े। इसी तरह वीडियो एडिटिंग के लैब्स होते थे। सारा काम, सारी चीज़ें बड़ी एक्सपेंसिव और बड़े जगह पे करनी पड़ती थी। आज की तारीख में सारा कॉम्पैक्ट हो गया। आज आप फोटो को एडिट इमेज अपने मोबाइल पे कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, काट सकते हो। आप इमेज में कोई भी स्पेशल इफेक्ट देना है तो आप कर सकते हो। छोटे बच्चे हमसे बेहतर कर लेते हो उस चीज़ को। वीडियो एडिट क्रॉप वो भी आप वीडियो एडिटर के थ्रू ऑनलाइन कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्मार्टफोन में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन ऐप अवेलेबल है जिनसे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। सो एक्यूरेट डुप्लीकेशन, one of the great things about digital technology is that it enables the exact duplication of media. For instance, you can write a work report and email it to multiple recipients, or you can distribute multiple copies of photos to family and friends. Breakthrough in technology are now happening in the field of 3D printing, which looks at the radically transform our world. आप एक्यूरेट कोई भी चीज़ को बना सकते हैं। आप जीरोक्स है, आप जो भी डॉक्यूमेंट आप डालेंगे वैसे ही एक्यूरेट वो निकलेगा। ठीक है, आप देखेंगे फोटोग्राफ्स की आप हजारों इमेज बना सकते हैं। आप कोई भी डेटा की सेम कॉपी बना सकते हैं। इट्स पॉसिबल थ्रू डिजिटलाइजेशन। GPS and mapping also the one of the benefit from digitalization. Finding your way around used to involve referring to a paper map, but digital combined with satellite technology has transformed travel. GPS service can now pinpoint your position accurately, update you on traffic jams and road closure in real time, and give you lots of data information such as time of arrival at your destination as well as alternative routes. जीपीएस मैपिंग, पहले आपको कहीं भी आप जाते थे तो आपको मैप फॉलो करना पड़ता था। मैप आपको रखने पड़ते थे और मैप आपको हेल्प कर। आज जीपीएस के थ्रू, मैपिंग के थ्रू, आज डिजिटलाइजेशन के थ्रू आपको मोस्ट ऑफ जगह पे, मोस्ट ऑफ लोकेशंस एरिया उस पर अवेलेबल रहते हैं। आपको वहाँ पे कौन सी डेस्टिनेशन, कितनी जगह पे, कितने किलोमीटर पे क्या है, होटल्स कहाँ पर हैं, पेट्रोल पंप कहाँ पे आएगा, कोई भी हॉस्पिटलिटी वाली चीज़ें, कौन सा रूट कहाँ से कट हो रहा है, कोई जाम है, कोई ट्रैफिक हुआ, कुछ वर्क चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको आज जीपीएस पे मालूम पड़ जाती है। और कहीं कहीं पे अननोन लोकेशन पे भी जीपीएस आपको वेरी हेल्पफुल है। आप वहाँ से आपको सही डायरेक्शन और सही रूट में ले जाने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो, मैनी ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स already really to an extent on digital technology. Road vehicles such as cars and trucks will become fully automated in the not too distant future. Accessing timetables as well as booking plans and trains now often takes place online. Passport contain digital chips that hold information, enabling self-service machines to speed up the process to checking in and passing through customers. ट्रांसपोर्टेशन भी आपको बहुत ईजी हो गया। आज आप मोबाइल पे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन डेटा एक्सेस कर सकते हो। आपको हार्ड कॉपी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी टिकट के लिए आपको लाइन में नहीं खड़ा होना। पहले रेलवे के लिए आपको शायद याद होगा कि जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो एक रेलवे टिकट लेने के लिए भी आपको लाइन में लगना पड़ता था। आज वो सारी परिस्थितियाँ पहले से फार बेटर हो गया। मोस्ट ऑफ ट्रेन बुकिंग, रेलवे बुकिंग, रिजर्वेशन बुकिंग, आप प्लेन बुकिंग, सारे अलग अलग एप्लीकेशंस पे आप कर सकते हैं। इवन होटल बुकिंग भी आपको वहाँ पर पॉसिबल है। आपका ट्रांसपोर्टेशन जो है पहले से काफ़ी स्मूथ हो गया है। नाउ लो कॉस्ट, aside from paying for an internet service that and the basic like modern, much of what the digital world offer can be accessed for free. Sending an email, communicating via video, link up with the family and surfing the internet generally cost nothing. It can provide opportunity to low cost self education, setting up business, buying and selling items or earning money online. आज आप देखें कि इंटरनेट एक्सेस का कॉस्ट काफ़ी लो है। आज आप इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ जो आप बोलेंगे रूटीन काम आप ऑनलाइन कर रहे हैं, जिनका एक्सपेंस अगर आज डिजिटलाइजेशन नहीं होता
तो वो काफ़ी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव होती, लेकिन डिजिटलाइजेशन होने के कारण वो सारी चीज़ें आपको लो कॉस्ट में मिल रही हैं। नाउ entertainment, the entire entertainment industry and the way that people amuse themselves has been radically transformed since the start of the internet revolution. Many people get their fun from online social media or playing computer games. Traditional media has evolved to edge revolution एंड ब्रॉडकास्टिंग है बिकम डिजिटल अलॉन्ग विद रेडियो। अब आप देखें पहले के टाइम पे काफ़ी सारे लोग रेडियो सुनते थे, बाद में वॉकमैन, टेप, फिर उसके बाद में सीडी प्लेयर, ये सारी चीज़। आज मोबाइल पे आप वीडियो गेम खेल सकते हैं, आप यूट्यूब पे पिक्चर देख सकते हैं। आज आप देखें, आज आप एंड्रॉयड टीवी आ गया, जिसके कारण आपको आपका आपका एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया। पहले हमें याद है कि काफ़ी टाइम जब हम छोटे थे तो दूरदर्शन आता था, फिर मेट्रो चैनल चालू। आज लॉट्स ऑफ चैनल अवेलेबल है आपके लिए, अलग अलग चीज़ों पे। न्यूज़ का अलग चैनल है, स्पोर्ट्स का अलग चैनल है, कॉमेडी का अलग चैनल है। आप देखें तो एक्शन का अलग चैनल है, मूवी का अलग चैनल है, फैमिली ड्रामा का अलग चैनल। ये सारी पॉसिबिलिटीज डिजिटल मीडिया के डिजिटल लाइसेंस के थ्रू पॉसिबल हुए हैं। आपका एंटरटेनमेंट का भी एक्सपीरियंस पहले से फार बेटर हुआ, एचडी आ गया आपके आज के टाइम में, और पिक्चर क्वालिटी इंप्रूव होगी। पहले आपके पास काफ़ी सारी पिक्चर क्वालिटी भी डिस्टर्बेंस आती थी। नाउ न्यूज, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पीपल गेट देयर न्यूज ऑनलाइन। आज काफ़ी सारे लोग जो है न्यूज़ भी ऑनलाइन, आप देखेंगे कि न्यूज़ भी ऑनलाइन वो पढ़ लेते हैं। ब्रेकिंग, आपके स्मार्टफोन पे ब्रेकिंग न्यूज आती है, ये आज ये पॉसिबल हुआ। अभी मैं आपका वेबिनार कर रहा हूँ, अभी मैच चल रहा है, तो मेरे पास फटाक से वो स्कोर आ जाता है। वारफेयर, एडवांस इन टेक्नोलॉजी मेन डेट वार कैन इंक्रीजिंग फॉर्ड रिमोटली अवॉइड द रिस्क एसोसिएटेड विद द हैविंग सोल्जर्स फिजिकली प्रेजेंट ऑन और अबाउट द बैट। आज जो युद्ध है, जो लड़ाइयाँ होती हैं, बैटल होते हैं, जो मतलब कि सोल्जर्स क्या भी, वो भी काफ़ी सारा आज बिल्कुल डिजिटल में चेंज हो गया है। आज आप देखेंगे कि where they are prone to injury or death, drones and missile technology are particularly relevant on digital technology working effectively। आज आप देखेंगे कि रिमोट से आज बहुत सारी जगह पे डिजिटल टेक्नोलॉजी इतनी सारी इम्प्रूव हो गई कि आपकी जो वार है, लड़ाइयाँ हैं, वो पहले से एक तो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन जो है वो डिजिटलाइज जो ड्रोन है, फिर आपका मिसाइल्स हैं, वो एक्यूरेट जीपीएस के थ्रू एक्यूरेट वो लोग अटैक करते हैं, जिससे आपके सोल्जर्स की इंजरी, जो आपके रेट्स ऑफ सोल्जर जो आपके मर जाते थे और आप बोलेंगे शहीद होते थे हमारे जो सोल्जर, उनमें कमी आई है। हमने अपने सोल्जर्स की लाइफ को सेव किया है, और सोल्जर्स की लाइफ को सेव करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल डिजिटलाइजेशन का है। आज डिजिटलाइजेशन के थ्रू हमें अपने सोल्जर्स की एक्यूरेट लोकेशन मालूम पड़ती है, उसकी कंडीशन मालूम पड़ती है, जिससे हमने इन सब चीज़ों को अपने आप में इम्प्रूव किया, और जिसके कारण कि आज सोल्जर्स की प्रोडक्टिविटी और सोल्जर्स के काम को इम्प्रूव हुआ है, और वार के अंदर जो उनकी शहीदी होती थी उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, देयर इज नो डाउट दैट डिजिटलाइजेशन हैज लीड ए रिवोल्यूशन इन फाइनेंशियल मैटर्स। ऑनलाइन बैंकिंग डन आइदर through a laptop, tablet or phone app is now the norm. Bank users can now check their incoming and outgoing payment remotely, so as well as arrange money transfer and bill payments. आज आप देखेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के अंदर वेरी बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आया, क्रांति आई है। आज आप पेमेंट मोबाइल से पेमेंट कर रहे हैं, मोबाइल गेटवे चालू हुआ, पेमेंट गेटवे चालू हुआ, इजी हो गया, पेमेंट ट्रांसफर इजी है, पेमेंट लेना इजी है, ठीक है, यूपीआई आ गए, वो सारे आज कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए। सो नाउ स्मॉलर साइज डिवाइस, आज आप देखें कि ऑन जनरल इफेक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी दैट इज ऑलमोस्ट taken for granted is that device can be made much smaller than phones that we carry around are mini computers, for example, capable of surfing the net, working as calculators, planning journey, capturing and playing photos and audio and videos, providing games or
amusement as well as operating as a phones and having the functions. आज आप देखें कि आज के डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में पहले हम कहीं जाते थे घूमने के लिए तो कैमरा लेके जाते थे रिकॉर्डिंग करने के लिए। आज आप देखें एक छोटा सा आपका मोबाइल कॉम्पैक्ट आपका स्मार्टफोन जिसके अंदर में कैमरा भी है, वीडियो कैमरा भी है, और उसके अंदर कैलकुलेटर भी है, उसके अंदर घड़ी भी है। आज आपका एक छोटा सा स्मार्टफोन आपके मल्टीपल काम कर रहा है बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन। आज आपका कैमरा का काम फोन कर देता है, आपके वीडियो वीडियो कैमरे का काम भी फोन कर रहा है, घड़ी का काम फोन कर रहा है, आपका स्मार्ट वॉच, आपके किसी भी तरह की टीवी का काम, इवन एंटरटेनमेंट भी आपका फोन कर रहा है। आपका स्मार्टफोन आज की तारीख में आपके पास एक पावर है जिसपे आप बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, डेटा एक्सेस, मेल एक्सेस, आप काफ़ी सारे ज़्यादातर वर्क उसी के ऊपर कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी, टिकट बुकिंग, ऑन एवरीथिंग इज पॉसिबल थ्रू डिजिटलाइजेशन ऑन योर स्मार्टफोन। अब अभी तक जितना भी हमने देखा, अभी तक तो हम गुणगान कर रहे थे डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन में ये है, डिजिटलाइजेशन में वो है, तो ये सारे एडवांटेज थे, मतलब ये सब पॉजिटिवनेस थी, ये डिजिटलाइजेशन के पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने डिस्कस किए। मैंने आपको आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मेरा आज टुडे वेबिनार इज फर्स्ट कोड इज डिजिटल एंड सेकेंड कोड इज सोशल मीडिया and all both codes are important to generating feedback form link and feedback form are we are sending all those participants to the register with this webinar and those participants want to feedback link please comment your email id in the comment section। तो अभी तक हमने गुणगान किया, अभी तक हमने बेनिफिट्स देखे, अभी तक हमने एडवांटेज देखे डिजिटलाइजेशन के, बट द डार्क साइड ऑफ डिजिटलाइजेशन, कोई भी आपको याद होगा मैंने वेबिनार के स्टार्टिंग में कहा था आप लोगों से, पहले तो मैं अगेन आई रिपीट द कोड, फर्स्ट इज डिजिटल, सेकेंड इज सोशल मीडिया, टू कोड्स एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग विद द डार्क साइड ऑफ डिजिटलाइजेशन। सो अभी हम डार्क साइड देखेंगे डिजिटलाइजेशन की क्या है। अभी तक तो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा लगा, सब कुछ मैंने अच्छा अच्छा बताया, मैंने आपको सब कुछ बढ़िया चीज़ बताई था कि आपको एकदम अच्छा लगे, ये तो सब मैं जानता हूँ, ये सब मुझे पता है। आपने मेरा अभी तक का वेबिनार देखा, बोलोगे कि सर आप क्या बता रहे हो, मुझे पता है, आई नो एवरीथिंग बिकॉज आई एम ए यंग जनरेशन एंड आई एम यूजिंग स्मार्टफोन्स एंड आई नो एवरीथिंग, बट आर यू नोइंग द डार्क साइड ऑफ डिजिटलाइजेशन? नुकसान भी पता है आपको, डिजिटलाइजेशन के नुकसान भी हैं। सो नाउ वी डिस्कस विद द नेगेटिव और डिसएडवांटेज ऑफ द डिजिटलाइजेशन। फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज इज डाटा सिक्योरिटी। Digital technology means that vast amounts of data can be collected and stored. This can be private information concerning individuals or organizations. It can be very difficult to keep this data safe. Just a single breach can make vast amounts of private information going into the hands of criminals, terrorists, business rivals, foreign advertisers, और अदर मालिग्नेंट एंटिटीज। डिजिटलाइजेशन के एरा में और डिजिटलाइजेशन के पीरियड और वर्ल्ड में सबसे मेजर जो टास्क है वो डेटा सिक्योरिटी। आज आपका मोस्ट ऑफ डेटा, इवन आपकी पिक्चर तक डिजिटल वर्ल्ड पे अवेलेबल है। डिजिटल आज जितनी ज्यादा आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्राइवेसी, आपको लग रहा है कि मैंने कोड डाल दिया, मैंने ये डाल दिया, मैंने वो डाल दिया, मैंने पासवर्ड डाल दिया, मेरा पासवर्ड बहुत अच्छा है, मेरा ओटीपी आता है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड।
डिजिटल के अंदर में सबसे मेजर जो आप बोलेंगे कि भाई डिसएडवांटेज है, वो डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं, आपका डेटा कभी भी हैक हो सकता है, कोई भी कंपनी का डेटा हो हैक हो सकता है, क्रिमिनल्स के हाथ में जा सकता है, टेररिस्ट के हाथ में वो डेटा जा सकता है और उसका मिसयूज होता है। इवन आप अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर आप बड़े बिजनेसमैन हैं, आपको पता टेंडर की बिडिंग होती है, टेंडर की बिडिंग का अगर डेटा कहीं लीक हो गया तो वो टेंडर किसी और को चला जाएगा। और जो बिजनेस बड़े बिजनेसमैन है वो बेहतर जानते हैं कि डेटा प्राइवेसी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका बिजनेस का यूएसपी पे डेटा रहता है, आपकी यूएसपी है डेटा। आप किस तरह बिजनेस कर रहे हैं, आपका क्या अगला स्टेप है, आपकी क्या आपकी विजन है, क्या आपका फोकस है, अगर वो सारा लीक हो गया तो आपको दिक्कत होगी। और दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपका डेटा आपके कंपटीटर के पास चला जाता है। तो डेटा सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही बिग टास्क और मेजर टास्क है डिजिटल वर्ल्ड में। क्राइम एंड टेररिज्म, अभी आप देखेंगे अभी वो क्राइम नहीं रहा भाई। क्राइम अभी क्रिमिनल बिल्कुल चेंज हो गए, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हुई है क्रिमिनल भी चेंज हो गए। नाउ द टाइम ऑफ इंटरनेट हैकर्स, नाउ द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांस क्रिमिनल्स। The internet is fertile territory of malevolent forces to operate thanks to its international nature, vast scale, and the relative anonymity the users can enjoy. Examples of the include terrorists using social media to promote themselves and encouraging other drugs dealers using the dark web to trade, pedophiling using the chat rooms and other places to groom potential victims. आप देखेंगे स्मार्ट इंटरनेट क्राइम बढ़ गया। इंटरनेट के ऊपर में आज की तारीख में हैकर्स वायरस छोड़ते, आपने सुना भी होगा कि वायरस आ गया, शट डाउन हो गए कंप्यूटर्स, उसके सामने उन्होंने बहुत सारा पैसा मांगा, ये सारी चीजें बढ़ गई। डेटा हैक होने लगा, डेटा कॉपी होने लगा, डेटा बिकने लगा, एक तरह से वो क्राइम है। इवन कंट्री की सिक्योरिटी के जो डेटा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के डेटा वो भी लीक हो जाते हैं, जो एक आतंकवाद से कम नहीं है। किसी भी कंट्री का सिक्योरिटी डेटा लीक होना इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम, जो इस डिजिटल वर्ल्ड में ज़्यादा पॉसिबल हो गया। मतलब आप कह सकते हैं कि आपकी जो गोपनीयता है, गोपनीयता, आपका जो सीक्रेट है, आपका जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, वो आज की तारीख में इजीली एक्सेस हो रही है। Complexity, we no longer understanding working of the device and machine that we interact with on a daily basis. Fixing a modern car now mean increasing with a computer. It is no longer just mechanical. Using a phone can involve tackling all sort of complicated settings. Minor getting the operation of a laptop can cost both time and expense. Privacy concerns, it has become much harder to have personal privacy in the digital world, and that's on top of the dangers of your personal data being stolen or sold. For instance, everybody has the ability to take photos and video footage on their mobile phone, then post it online. Employers can search for people online and maybe find unflattering photographs or seen them expressing controversial opinions in social media or blogs. Digital cameras watch and record our movement in public places. Minors indicators can now hunt an individual for life when they are posted on the internet. Controlling your personal information is very difficult and sometimes impossible.
I request you, all of you, to control your uploading your personal information in online or digital platform. आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उसको सोशल मीडिया पर शेयर ना करें. So the third code of our today's webinar is data security. First code is digital, second social media, and third is data security. Social disconnect. There is an increasing tendency for people to socialize and communicate via digital devices rather than through a real life contact. This can easily lead to a sense of disconnect and isolation. Human beings have evolved over thousands of years to have real contact, taking that may affect them in all sorts of negative ways that we only just beginning to understand. Studies have suggested that the lack of real life contact is causing depression and other forms of mental illness in people. सोशल डिस्कनेक्ट. हमने पहले जब बेनिफिट पढ़े थे तो हमने जब बेनिफिट पे डिस्कस किया तो उसमें हमने सोशल बेनिफिट बताया, सोशल मीडिया कनेक्टिविटी. आपने अपने रिलेशन, अपने रिलेटिव फ्रेंड को सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर लिया, आप उनको एक्सेस कर रहे हैं, वो आपको एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन आपका गेट टुगेदर बढ़ गया. डिजिटल के ऊपर आपका गेट टुगेदर बढ़ गया. आप डिजिटल पे उनको फोटो शेयर कर रहे हो, आपको फोटो शेयर, लेकिन ये सारा वर्चुअल वर्ल्ड है. दोस्तों के साथ बैठ के घूमना फिरना, चाय नाश्ता करना, वो सब नहीं है. ये धीरे धीरे आपको ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहां पे आप सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे. आप अपने फादर को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, लेकिन उनको फोन नहीं करते. आपका दोस्त आपको हैप्पी बर्थडे विश करता है, 100 200 300 400 1K तक लाइक आते हैं, हैप्पी बर्थडे विश आती, लेकिन वो आपको फोन नहीं करते. आज आप जिस शहर में रह रहे हैं उसमें हो सकता है आपके 100 ऑफ फ्रेंड्स हो, आपको सोशल मीडिया पर उन्होंने विश कर दिया, लेकिन वो आपको मिलने घर नहीं आते. ये वर्चुअल वर्ल्ड आपको रियल लाइफ से धीरे धीरे दूर करता जा रहा है, जो आगे जाकर के आपके लिए डिप्रेशन का कारण बन सकता है. आपको पता है कि जब आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट होते हैं और दोस्तों से बात करते हैं तो उस समय आप अपनी काफ़ी सारी बातों को शेयर करते हैं, आप एकदम अपने आप को मेंटली रिलीफ फील करते हैं. लेकिन जब आप सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं, लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, तो आपका डिप्रेशन लेवल, आपका हाई बीपी वो बढ़ना शुरू हो जाता है और काफ़ी सारी बीमारियां आपको हो जाती हैं. इसलिए बेहतर है हर चीज़ का एक लिमिटेड यूज़ करना. हो सके तो मिलो, दोस्तों से मिलो, फ़ोन पे बातें करो, जितना हो सके गेट टुगेदर में बिलीव रखो. काफ़ी जगह पे आपने देखा होगा कि दोस्त मेरे 5,000 पर मिलने वाला कोई नहीं. फेसबुक पे 4,000 5,000 फ्रेंड हैं, लेकिन उसको मिलने के लिए कोई नहीं आता. वो अकेला वर्चुअल वर्ल्ड में जीता रहता है, दूसरे के फोटो लाइक करता है, उसको लोग जानते भी नहीं कि वो कौन है. हमें ऐसा वर्ल्ड नहीं चाहिए. वर्क ओवरलोड. बेनिफिट्स आप सब जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि बेनिफिट्स बताऊंगा जो सबको पता है, लेकिन इसकी भयानकता को जानिए. डिजिटलाइजेशन की भयानकता को जानिए. मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको एक लिमिटेशन के लिए बोल रहा हूं. क्रिएट योर ऑन लिमिटेशन, नॉट शेयरिंग योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑन ऑनलाइन. एवरीथिंग प्राइवेट चीज़ों को शेयर मत करो. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उसको शेयर करो, लेकिन लिमिट में उसको पासवर्ड उसमें वो रखिए आप, सेफ्टी कोड. Many modern workers spend their day trying to keep up there with the hundred of emails that they are sent each week, all of which
require replies or action text from colleagues in the evening or the weekend can mean that people never fully accept work. Digital media manipulation. Digital media such as photographs, audio and video are easily to edit, making the manipulation of media widespread. It's not always easy to tell what is the real and what is the fake anyone. Photographs can be altered using editing tools such as Photoshop. Digital audio and video can be doctored. The issues will only intensify as the technology improves. Job insecurity. It used to be that you had to be physically present at a workplace to do a job, but now many work tasks are performed remotely via the internet. That means a third world worker in a low wage economy can undercut you and take your job. Increasingly, humans are not needed to at all from many tasks as computers gradually replace them. Driving and delivery jobs, for instance, will disappear soon as vehicles become automated. Plagiarism and copyright. Digital media is remarkably easy to copy and reproduce. Copyright laws are increasingly hard to enforce as the music and movie industries have discovered to their cost. School kids can copy and paste their homework project without really learning anytime. A culture of sharing on social media means that often the original creator of a piece of media is forgotten as the piece is adapted and claimed by others. Anonymity and fake persons. Digital technology wide scope for use to hide their identities. Studies show that people are much more likely to behave antisocially if they don't think that there will be any consequences. Bullying, trolling, stalking, threatening and insulting behavior have all increased dramatically with their rise of internet. काफ़ी सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। मतलब जिस तरीके से आप देखें कि आपके फ़ोटो का कॉपी करके उसके साथ में कुछ भी कोई कर सकता है, आप कुछ चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। उसको हैकर्स या क्रिमिनल किसी भी तरीके से यूज़ करते हो तो आपको उनसे बचना ज़रूरी है। एडिक्शन. सोशल मीडिया, कंप्यूटर गेम्स, मैसेजिंग एंड डेटिंग वेबसाइट्स कैन बी एडिक्टिव. Games want you to play so that you will buy the next version. Website want you to internet so that they can bring an advertising money. Addiction, लत, आदत. लोगों को आदत लगती जा रही है डिजिटलाइजेशन की. आप देखेंगे कि आपका अगर नेट बंद है आप बेचैन हो जाते हैं. जिस तरीके से खाना नहीं खाने पर आपके अंदर बेचैनी आती है, उस तरह की बेचैनी आपको इंटरनेट बंद होने से हो जाती है. अगर 2 दिन आपका इंटरनेट बंद है तो आप बेचैन हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता कि मैं क्या करूं. लत. आपको इंटरनेट की लत लग चुकी है. सोशल मीडिया पे अगर आपने 2 दिन तक व्हाट्सएप चेक नहीं किया तो आप परेशान हो जाते हैं. फेसबुक नहीं देखा तो परेशान हो जाते हैं. बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं उसके एडिक्शन हो जाता है उनको. नया वर्जन आया तो उनको खरीदना है. जो लोग कुछ वेबसाइट एक्सेस करते हैं उनको नए वर्जन पे नए अपडेशन पे पैसे बिगाड़ने पड़ते हैं. आप देखें आज की तारीख में अगर आपको लग रहा है मेरा बच्चा बैठा हुआ है घंटों से मोबाइल से शांति से, गलत है. आपका बच्चा मोबाइल का एडिक्टेड हो चुका है. अगर आपको पता ना हो, अगर आप उसको खाना भी नहीं खिलाएंगे तो खाना नहीं खाएगा वो, क्योंकि उसको इतनी लत लग चुकी है, उसको इतना एडिक्शन हो चुका है मोबाइल का कि अगर उसको पता नहीं चल रहा कि मुझे भूख लगी है, उसकी लाइफ वो वीडियो गेम है. ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है इस डिजिटलाइजेशन का. आज बच्चे बाहर नहीं खेलने जाते,
फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई। आपको पता है कि फिजिकल फिट जो आदमी रहता है वो लॉन्ग लाइफ जीता है। इनका क्या, आंखों की रोशनी कम हो रही है इनकी, मेंटली ये लोग अलग से बिहेव करते हैं। अरे छोटा बच्चा देखो जिसकी एज 5 साल है, वो 10 साल के बच्चों की तरह बात करता है। आपको लगता है मेरा बच्चा इंटेलिजेंट है, लेकिन नहीं, वो वक्त से पहले मैच्योर हो रहा है। डिजिटलाइजेशन बच्चों को वक्त से पहले मैच्योर कर रहा है, जिससे उनका बचपन कहीं ना कहीं खो गया है। अगर बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा और ये इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन के एडिक्शन में फंसा रहेगा तो उसका फ्यूचर क्या है। सो प्लीज स्टॉप द एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और द वर्चुअल वर्ल्ड। हकीकत में जीना सीखो, वास्तविक जीवन को अपनाओ। अरे आपके सोशल मीडिया फ्रेंड कोई नहीं है जिनको आप कभी मिले नहीं, कभी जानते नहीं हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। जो आपका दोस्त आपके बगल में रहता है, आपको रोज मिलता है, इट्स योर रियल फ्रेंड। तो वर्चुअल फ्रेंड और रियल फ्रेंड को पहचानो। इसीलिए आज का टॉपिक मैंने ये लिया। डिजिटलाइजेशन का टॉपिक लेने का मेरा जो मेन जो कारण था वो यही था, क्योंकि जब मैं टॉपिक शुरू करूंगा तो आपको लगेगा भैया है तो मुझे पता है, लेकिन आपको इसके डिसएडवांटेज पता है। आज डिजिटलाइजेशन कितना भयानक रूप ले चुका है। डेटा सिक्योरिटी नहीं है, आपकी प्राइवेसी नहीं है, आपको एडिक्शन हो चुका है इसका। हैकर्स बैठे हैं, क्रिमिनल्स बैठे हैं, बैंक का पैसा लूट लेते हैं। So today's webinar, our last code, first code is digital, second social media, third data security, and fourth code of our today's webinar is addiction. तो आज के वेबिनार का टॉपिक जो है ये एकदम सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसके पीछे का जो मेन जो मकसद है, द इंटेंशन ऑफ द टुडेज वेबिनार इज टू कंट्रोल द एडिक्शन ऑफ डिजिटलाइजेशन। हर चीज अच्छी है, उसको अपनाओ। डॉक्टर बोलता है डाइट करो, लिमिटेशन वर्ड, लिमिटेशन हर चीज की जरूरी है। इसी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड में आप रह रहे हो, आपको आगे बढ़ना है, इसने आपके जीवन को चेंज किया है। जितने इसने बेनिफिट्स दिए हैं उतने इसके नुकसान भी हैं। सो प्लीज सिक्योर योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इफ पॉसिबल टू एडिक्शन ऑफ द डिजिटलाइजेशन। वर्चुअल वर्ल्ड में मत जियो, रियल वर्ल्ड में जियो। बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी में डालो, ना कि वीडियो गेम एडिक्शन में। अरे मेरा बेटा तो 15 लेवल पार कर गया गेम में, वाह। अरे उसको बोलो क्रिकेट का बैट उठा के 15 रन बनाए। फिजिकल एक्टिविटी करो, फिट रहोगे तो लंबा जियोगे। So, thanks to join our 34th national webinar, and again request you all participants, all subscribers, and those person are join this webinar video later, please limit or control your addiction on digital world. Live like in a real world, living in real world, not a virtual world. So thanks to join
our webinar, and meet you soon in our next webinar on next Sunday. Thanks and bye. Take care and safely with your friends and family. Bye and take care.